اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. پروگرام دوستی کے ساتھ آپ کا دوست میزبان آر جے حیدر شیخ آپ کے ساتھ. تو جناب کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت مزاج سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ, میں بھی ٹھیک ٹھاک اور امید کرتا ہوں جناب کے تمام سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. تو جناب پروگرام کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں اس خیر دعا کے ساتھ. جناب جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں, اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تو جناب آپ بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے SPR اسپیس دیں, اپنا نام اور پیغام ہمارے ساتھ شیئر کریں 8881 پر 8881 پر, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. کال کے لیے نمبر ڈائل کیجیے 02199213663 99213663. اس پہ کالز آپ کی موجود ہوں گی تو ہم ضرور پروگرام میں شامل کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ذرا میسج کی طرف بھی آپ کا رخ کریں گے, اور کافی سارے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جناب میسیجز بھی بہت کم آپ شامل کرنے لگے ہیں, ٹریکس تو آپ نے بہت ہی ریئر کر دیے کہ بہت کم چلاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جناب کے اب موضوعات کچھ بعض اوقات ایسی باتیں ہماری شروع ہو جاتی ہیں کہ جس کو سمیٹنا اور کوشش ہوتی ہے کہ جی اسی قلیل سے وقت کے اندر تمام چیزوں کو پورا کیا جائے. لیکن آپ لوگ گھبرائیں مت, نہ پریشان ہو, انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی آپ لوگوں کے میسیج کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹریکس کو بھی ساتھ ساتھ پلے کرتے رہیں گے. تو جناب گزشتہ ہفتے جو بات ہوئی اسی سے تھوڑا سا منسوب کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے لے کے چلیں گے. آج کا جو موضوع ہے تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے, اور کچھ چیزیں جو کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اور جس کی وجہ سے بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ اس طرح دل کھول کے بات کی جائے, لیکن کچھ چیزیں کچھ پابندیاں ہمارے پر ایسی ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی جو ہے وہ لب کشائی میں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کا استعمال کرتے ہیں. لیکن چلیں کوئی بات نہیں. اور کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں سے آہستہ آہستہ ڈسکنیکٹ ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. اچھا, ہم کنیکٹ ان چیزوں سے ہو رہے ہیں, خاص طور پہ یہ ہمارے سامنے ہمارا موبائل اور یہ دیگر اس طرح کی الیکٹرانکس ایکوپمنٹس جس کے ساتھ ہم دنیا سے کنیکٹ ہو رہے ہیں, لیکن اپنے قریبی عزیز اقربا سے جن کو روزانہ تقریباً دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے ہمیں, اور ہم انہی کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے, انہی کی حال احوال سے ہم دور ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ خیریت سے ہیں, یا ہم ہر چیز کا جواب سوچتے ہیں کہ چلو اچھا جی موبائل سے کال کر کے معلوم کر لیں گے, یا کہیں ملاقات ہوئی تو پوچھ لیں گے. نہیں جناب, ذرا اس موبائل کی دنیا سے ان چیزوں سے ذرا باہر نکل کے آئیے اور ایک حقیقی دنیا میں آئیے, تاکہ لوگوں کو سمجھ سکیں, لوگوں کی بات سن سکیں, اور پھر اپنی کوئی بات بھی آپ ان سے منوا سکیں. تو جناب آج کا موضوع بھی ہم نے بس یوں ہی انتخاب کیا, اور گزشتہ ہفتے مجھے ایک بڑا اچھا ایک لیکچر سننے کو ملا, اور میں خود ان کی بات سن کے بڑا متاثر ہوا. تو میں نے کہا جی چلیں, یہ تو ہمیں انہوں نے جو ہے اپنا گرویدہ بھی کیا اور بڑی اچھی بات کی, اور میں نے کہا چلیں میرے پاس تو ایک الحمدللہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے 88.6 کا, تو میں ریڈیو کے ذریعے سے اپنے تمام سننے والوں کے ساتھ اپنی اس بات کو ضرور ان کی شیئر کروں گا. اور بہت ساری باتیں, بہت سارے پوائنٹس جو ہیں بالکل آپ کی ہماری نظر میں آتے ہیں, اور ہم نہ جانے کتنی ہی ایسی باتیں کرتے ہیں یا کتنی ہی ایسی چیزوں کو سوچتے ہیں, شاید ہو سکتا ہے میننگ لیس ہو, سینس لیس ہو, کسی کا کوئی تک نہ بنتا ہو, لیکن کہیں نہ کہیں جا کے وہ بات اپنا ایک خاص اثر رکھتی ہے. اس اثر کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنے اندر آپ کو ایک تبدیلی خود سے محسوس کرنا چاہیے. اور بہت ساری جگہوں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگوں سے جب کنیکٹ ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر چیزوں کو جو ہے بہت زیادہ سلائٹلی کہتے ہیں, اس طرح تمہارا دوست ہے یار, اس سے یہ کیوں ہم سے خفا ہوگا, یہ کیوں ناراضگی ہو جائے گی, یا کوئی ایسا عزیز رشتہ دار, یا کہ رشتہ داروں میں کوئی آپ کو ایسی چیزیں میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جہاں آپ کی بات کی وجہ سے بہت ساری جو ہے اختلاف ہو جاتے ہیں. اور وہی والی بات ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. جب انسان کی زبان جو ہے وہ بات کرنا شروع کرتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو زبان ہے یہ دکان جو ہے وہ کوئلے کی ہے یا ہیرے کی ہے. تو یہ آپ کا اور ہمارا جو ہے وہ ایک چوائس ہوتی ہے کہ ہم کن الفاظوں کے ذریعے سامنے والے کو اپنی بات جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ اختلافات کی بنیادی وجہ جو ہے ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ جگہ لے لیتے ہیں, جس کی بدولت ہم اس قریبی دوست کو, اس عظیم رشتے کو خود اپنی زبان کی وجہ سے, ان چیزوں کی وجہ سے ہم پیچھے کر دیتے ہیں. بہت ساری ہم دیکھتے ہیں کہ جی شکوے شکایت گلے ہوتے ہیں لوگوں کو, اور لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے اس وقت اگر تھوڑی دیر اپنے آپ کو ذرا خاموش رکھ لیا ہوتا تو ہمیں آگے چل کے یہ پرابلم نہیں ہوتی. خیر یہ بہت ساری اس چیز کے جو ہیں وہ پرابلمس ہیں, یا ہم مسائل دیکھتے ہیں کہ جی ہم لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہونے یا ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. اصل میں ہم لوگ جو ہیں وہ ایک اس طرح سے ان چیزوں کو بعضوں کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے کہ ہم سامنے والے کی جو ہے کوئی بات کو سن سکیں, سمجھ سکیں, بلکہ ہم الٹا ہی جو ہے اپنی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم پہلے اپنی بات سنا لیں تاکہ سامنے والا جو کہتا ہے وہ کہتا رہے, لیکن جو ہم جانتے ہیں, جو ہم کہنا چاہتے ہیں, وہ بات جو ہے وہ
एम्पावर्ड हो। और अगर हमें ये चीज़ें समझ में आ जाए ना बुनियादी तौर पे कि जी हमें अगर लीड करना है किसी को, या हमने किसी जगह पे कोई मैनेजमेंट का कोई काम करना है, तो हमें सबसे पहले खुद से अपने लिए और दूसरों के लिए आसानियाँ जो पैदा करनी है, उनमें ख़ास तौर पे जो हमें सामने वाले की ज़रूरत को समझना है, उसका इंटरेस्ट देखना है, उसका कंसर्न देखना है कि वो किस चीज़ के लिए जो इतनी मेहनत की जा रही है। ये ना हो कि हम जो है सामने वाले की बात को इम्पोर्टेंस दिए बगैर इतनी ज़्यादा बात कह दें, या इतना ज़्यादा हम उसके साथ जो है वो ताल्लुक़ कायम कर लें जिसकी वजह से आगे चल के हमें ही परेशानी का सामना करना पड़े। तो एक ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप हम एक दूसरे के साथ ट्रस्ट डेवलप नहीं करेंगे तो उस चीज़ को हम ट्रस्ट को एक्सटेंड भी नहीं कर सकते। तो भरोसे वाली बात होनी चाहिए, और सबसे पहले खुद कोशिश करें कि पहले अपनी दुरुस्तगी करें, अपनी गलती को पहले जस्टिफाई करें कि अब गलती आपने की है ना, अब आप इस पर खुद डिफेंस ना करते रहें कि जी मैंने गलती की है तो ये गलती नहीं है, यही सही है। नहीं, आप उसके ऊपर जो है अपना एक मौक़िफ़ रखें, हाँ ये गलती हो गई है, समझें, उसको अंडरस्टैंड करें, फिर उसके बाद कोई जो है आप जवाब दें। बाज़ों का इंसान जो है वो दूसरों को बहुत सारी कोशिश करता है कि समझाता रहे, सिखाता रहे, पढ़ाता रहे, लिखाता रहे, क्योंकि देखिए दूसरे पे तनकीद करना आसान है जबकि अपनी इस्लाह करना उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो ये इंटरेस्ट डेवलप जो करना है ना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ बात करना, और समटाइम होता है कि आप किसी से बात कुछ करते हैं लेकिन वो बात का जो है मतलब कुछ और निकलता है। क्यों? क्योंकि आपका वो एक लहजा, आपका एक एटीट्यूड, आपका बर्ताव, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो किसी चीज़ को बहुत मुख्तलिफ अंदाज से वो बयान कर रही होती है। कि आप कहना तो बड़ी सॉफ्ट बात चाहते हैं लेकिन आपका जो तलफ़ुज़ है या आपका जो कहने का अंदाज़ है वो इस हद तक सख्त होता है कि सामने वाला जो है उस नरम बात को भी बहुत ज़्यादा सख्त अंदाज से वो उसको ट्रीट करता है। तो कोशिश करें जो बात करें सही बात करें और बड़े ही शाइस्ता लहजे में बात करें। कोई ज़रूरत नहीं कि आपको चीखो पुकार मचाने के लिए। हम अक्सर अपने दोस्तों को कहते हैं जनाब ये बात आराम से हो सकती थी, हालांकि वो बात आराम से ही होती है। तो फिर ये सारी चीज़ें हमें जब देखने को मिलती हैं तो बाज़ों का इंसान का दिल चाहता है कि वो ऐसी कोई बात ना कहे कि जिसकी वजह से आगे चल के हो। अच्छा, इस सारी चीज़ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको थोड़ा दूरअंदेश भी होना चाहिए कि आप अगर आज कोई गलत बात कह रहे हैं या कोई गलत इकदाम करना उठाना चाहते हैं तो उसमें वहीं पे फिर आपको अगर दूरअंदेश होंगे तो वहीं आपको जो एक ब्रेक सी लगेगी, आपका माइंड आपको अलार्म करेगा नहीं जनाब आप कहीं कोई गलती कर रहे हैं, आपको इस तरह से कोई बात नहीं कहनी चाहिए या कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाना चाहिए जिसका आज तो कोई फ़ायदा या कोई नुकसान ना हो, लेकिन चंद दिन गुजरते ही या ये वक्त गुजरते ही आपको इसका एक जो है बड़ा मनफी रुख जो है बस देखने को मिलेगा। तो ये कोशिश आपकी हमारी होनी चाहिए कि हम अपने बात के दौरान अपने अल्फाजों का चुनाव अच्छा रखें, एक अच्छी बात दूसरे के साथ डिलीवर करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। मालूमात तो मेरे पास बहुत है, आपके पास भी मुझसे ज़्यादा मालूमात, लेकिन हम उसको शेयर नहीं करें, हम उसको जो है वो बंद करके एक डब्बे में हमने रखा हुआ, अपने जहन के अंदर उलझा दिया, इसको सुलझा दिया, इसको वहीं रखा हुआ है। हम उसको बाहर क्यों नहीं निकालते, दूसरों के साथ शेयर क्यों नहीं करते? क्योंकि हम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होते। हम इन डिवाइसेस के ज़रिए लोगों से हेलो हाय करते हैं, पूछ लेते हैं खैरियत से हैं, तबीयत कैसी है। गुज़िश्ता साल 2 साल हम अपना ज़रा माजी को टटोलें तो ये कोविड की वजह से तो ये चीज़ें समझ में आती थी कि ये प्रॉब्लम है, लोगों के साथ मिलना नहीं है, मिलने जुलने से ये जो है मर्ज़ फैल रहा है। उस वक्त तो ये बात ठीक थी, लेकिन आज के इस दौर में जब हम इन चीज़ों को देख रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम लोगों के साथ कनेक्ट हो, ना कि डिसकनेक्ट हो। जब तक हम किसी के साथ कनेक्ट नहीं होंगे जनाब तो हम कोई चीज़ को कन्वे नहीं कर पाएंगे, एक अच्छा मैसेज नहीं दे सकेंगे, कोई चीज़ समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि जब तक हमारी इंटरनली बाउंडिंग नहीं होगी, हम किसी के साथ म्यूचुअली एग्रीड किसी मौजू पर किसी बात पर इत्तेफाक नहीं करेंगे तो हमारे अंदर बस इख्तलाफ ही रहेगा, और इस इख्तलाफ की वजह से आपस में दूरियां हो जाएंगी और न जाने हम किस हद तक अपनी मंजिल से जो है बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि जो बात करें अच्छी करें, सुलझी हुई बात करें और सोच समझ के बात करें, ताकि कोई ऐसी बात जिसकी वजह से आपको आगे चल के कोई नुकसान ना उठाना पड़े, उसमें सोचना समझना हिकमत मसलिहत को ज़रूर सुन लें। जनाब सर कॉल शामिल करते हैं, फिर बात करें जनाब। अस्सलाम वालेकुम। ओके जनाब, कॉल हो गई है ड्रॉप। 99213663 नंबर है हमारा, 021 का इजाफा करें। कॉल अगर मोबाइल से मिला रहे तो 02199213666 पर कॉल भी शामिल करेंगे। इसके साथ साथ जनाब आप लोगों के मैसेज की तरफ भी रुख करते हैं और जनाब मैसेज की लिस्ट को रिफ्रेश करते हैं। ओके जनाब, अभी जो है मिस निज़ानुर का मैसेज नहीं आया तो आप लोग घबराएं मत, आ जाएगा जनाब। तो जनाब सबसे पहले आज सुमेरा सलीम का मैसेज आ चुका है। सुमेरा सलीम कहती हैं कि आज का मौजू तो अच्छा है और कुछ देर बाद आपको इस मौजू के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। चलें जी, ठीक है जी, इंतज़ार रहेगा आपके मैसेज का भी। और जनाब इसके साथ साथ है हमारे साथ इम्तियाज़ खोकर साहब हैं और कहते हैं जनाब अच्छा जी आपने ट्रैक की रिक्वेस्ट की, चलें जी कुछ देर में ज़रा बातों का सिलसिला आगे चल पड़े तो फिर हम जैसे कुछ टाइम निकलता ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट को भी इम्तियाज़ साहब ज़रूर शामिल करते हैं प्रोग्राम में।
اچھا جی جناب، ذرا باتوں کے سلسلے کو ذرا کنٹینیو کریں گے، یوں ہی ہم آپ کے اور ہمارا باتوں کا سلسلہ رہے گا. اور سب سے پہلے جو باتیں ہم سننا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں یا ہم کسی کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے اندر ہم صرف دوسرے سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یار وہ اچھا ہے ہمارے ساتھ، یا وہ کوئی اچھی بات کہے گا تو ہی ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے، نہ کہ ہم انتظار کریں یا وہ سامنے والا شخص انتظار کرے. اگر ہم نے کچھ پانا ہے تو تھوڑا سا کچھ جو ہے ہمیں کچھ اگر گین کرنا ہے تو کچھ تھوڑی سی پین کو بھی فیل کرنا پڑے گا. تو مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے، لوگوں کے ساتھ مل جائیے، گل مل جائیے لوگوں کے ساتھ. جب آپ کسی بھی سفر پہ جاتے ہیں تو تھوڑا ٹائم آپ کو انیشلی آپ کو تھوڑا سا لگتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں، اور کوشش آپ کی ہوتی ہے کہ جی جلدی سے ہماری باؤنڈنگ ہو جائے. کوئی نیو کمر آپ کے آفس کے اندر آتا ہے، کوئی نیو امپلائی ہوتا ہے آپ کے ساتھ، تو وہ بھی اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ اسٹارٹنگ میں شیئر کر رہا ہے، تو ابھی اپنی طرف سے 100% دینے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ چلو جی میں بھی اس کے ساتھ ہے کہ آپ کی آہستہ آہستہ باؤنڈنگ بننا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ باؤنڈنگ بعض اوقات اس حد تک آپ کو فائدہ دیتی ہے کہ آپ یا تو کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ اس کو سکھا رہے ہوتے ہیں، یا وہ اگر آپ کا تھوڑا سا اگر آپ نے اپنی ہیبت برقرار نہیں رکھی ہوئی، اگر آپ خاموش نہیں ہیں، زیادہ ہنسی مذاق کا آپ کا مزاج ہے، تو بعض اوقات یہ چیزیں آپ کے گلے بھی پڑ جاتی ہیں کہ جی وہ پھر وہ سامنے والا شخص آپ کے ساتھ اس حد تک بے تکلف ہو جاتا ہے کہ وہ پھر آپ کی ضروریات کو سمجھتا نہیں ہے، پھر وہ آپ کے اندر اپنا انٹرسٹ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ آپ کی ضرورت کے تحت آپ کو کہیں نہ کہیں بلیک میل کرتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا یار تمہیں یہ چیز ضرورت ہے، اچھا میں تمہارا یہ کام کر دوں گا، تم یا میرا پہلے یہ کام کر دو. تو آپ نے تھوڑا سا ایک گیپ کو بھی مینٹین رکھنا ہے اور ہر چیز کو متوازن لے کے چلیں تو جناب کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کی ایسے دیکھتے دیکھتے ہیں وہ سالو بھی ہو جاتی ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے یہ کہ آپ جو ہے جب تک اس چیز کو سمجھیں گے نہیں تو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے تو کام بنے گا نہیں. ایسا کچھ نہیں ہے جناب، آپ نے چیزوں کو بیلنس کرنا ہے، متوازن رکھنا ہے، اور جو جس جگہ کا بندہ ہے اس کو اس کے حساب سے ضرور ٹریٹ کریں. یہ نہ ہو کہ آپ کے ساتھ ایک بزرگ ایک ایکسپیرینس بندہ کوالیفائڈ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ جو ہے اس کی جو ہے اس طرح سے رسپیکٹ یا اس طرح سے اس کے کام کا ایکسپیرینس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے یا اس سے سیکھ نہیں رہے، تو یہ بھی جو ہے اس کو ڈس آنر کرنے والی بات ہے. تو آپ ذرا کوشش کریں. اور اس کے برعکس دوسرا وہ شخص جو کہ ابھی جس نے کیریئر کا آغاز کیا یا کسی بھی کام میں ابھی اس کی اسٹارٹنگ ہے اور آپ اس کے ساتھ آپ کا بیہیویئر بالکل ہی چینج ہے اس شخص کے مقابلے میں جو کہ بہت زیادہ ایکسپیرینس کوالیفائڈ بندہ ہے، تو یہ چیزیں خود سے آپ کو متوازن کرنی ہے، دیکھنی ہے، حالات کو سمجھنا ہے، اور کوشش ونس اگین وہیں آنے کہ اپنے وقت کو ضائع بھی نہیں کرنا اور کوشش کرنا اس میں زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں. ہم جو ہے ہمیشہ کوشش کریں کہ جی ہم دوسروں اپنی بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. جیسے آپ کے پاس کوئی ایک اچھی بات ہے، آپ کو کسی کمپیوٹر کو چلانے کے بارے میں علم ہے، یا کوئی بھی آپ ایسا کام کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو ایک اچھی نالج ہے، تو وہ ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. لیکن میں اکثر اس چیز کو بھی نوٹس کرتا ہوں کہ لوگوں کے پاس آدھی ہی جو ہے وہ معلومات ہو، تھوڑی زیادہ ہو تھوڑی کم ہو. یہ ایک ہوتا نا کہ آپ کو ایک چیز کے اوپر آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ ہاں اس وقت رات ہے تو وہ رات ہی ہے. یا پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو تھوڑی سی بات کہے کہ جو ہے بعض اوقات رک جاتے ہیں اور اس چیز کا نہیں سمجھ پاتے کہ جی ہمیں جو ہے اس بات کو کرنے میں کس حد تک جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا یا کس طرح سے جانا پڑے گا. ایک کام جس کو ایکسپرٹیز آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ اس شوق کے ساتھ جو ہے وہ انٹرسٹ اپنا ڈیولپ کرتے ہیں کہ یار میں اس کام کو سیکھوں گا، میں یہ کام کر سکتا ہوں یا میں کر لوں گا، تو آپ اس کا آغاز کریں. لیکن اگر نہیں کر سکتے یا ابھی ڈاون ڈول ہیں یا کروں نہیں کروں، تو اس کے لیے پہلے تھوڑا سا ایکسپرٹ کی صلاح ضرور لے لیجیے. ایک کال آ چکی ہے، پھر بات کریں جی. السلام علیکم. اوکے جی، ونس اگین کال ہو گئی ہے ڈراپ، اور دوبارہ رابطہ ہوتا ہے 99213666 پر، تو ضرور اس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. تو جناب ونس اگین آئی ہیو اے کال، اور جی کون ہے جی؟ السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک. آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. اب آ رہی ہے میری آواز؟ ہاں جی اب بہتر ہو گئی جناب. آپ سنائی سب خیریت ہے؟ بس ٹھیک ٹھاک، شکر ہے سر اللہ کا، الحمد للہ. شکر مالک کا ہونا چاہیے بس. ہاں جی. اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ خیریت سے ہیں جامن صاحب؟ جی جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. کچھ پارٹ اوپر دوائیوں کے اوپر چل رہا ہوں. بس یہ دوائیاں کھائیں، احتیاط کریں، موسم بھی تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے، اور ایک تو ڈینگی وائرس کا سن رہے ہیں، اور پھر بھی میں تو کہوں گا جناب احتیاط کریں. موسم اچھا ہے، تھوڑی سی دھوپ بھی سیکیں. اب تو دھوپ میں بیٹھنے کا بھی مزہ آتا ہے. نہیں نہیں ابھی اوپر تو نہیں بیٹھ رہا ہوں، ابھی تو کچھ سردی لگتی ہے ابھی. اچھا روم کے اندر ہوں. اچھا اچھا صحیح ہے. چلیں جی. تو
कंबल लेके सोना पड़ता है फिर हाँ भाई। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और पिछले पहर में तो बहुत ज़्यादा आपको ठंडक महसूस हुई। अभी तो लगता है ना हमने कंबल ले लिया, पंखा चला लिया रात में, तो अब तो बातों का दिल चाहता है कि जी अब आप जो है कंबल में ही रहें, और जो है सुबह के टाइम पे जब आप अपना पंखा बंद कर दें आप। जी 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 जी, यही करते हैं बस। लेकिन पंखा चलता है, ऊपर कंबल लेके सो जाते हैं, लेकिन पंखा लाजमी चलेगा। हाँ जी, अभी तो मौसम ऐसा है ना, लेकिन चंद दिनों के बाद इंशाल्लाह ये पंखा चलाने की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। कराची में बड़ा अच्छा मौसम हो जाएगा। क्योंकि पंखा बंद हो जाएगा ना फिर। जी जी। अच्छा, आप कैसे हैं? आने में आपकी मैं तबीयत ठीक कैसी ठाक है? हूँ जी, शुक्र है अल्लाह पाक का, सब मज़े मज़े में। बस ये पूछ रहे हैं बस। इलाही आमीन, इलाही आमीन। तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। पाकिस्तान वालेकुम जिंदाबाद। जिंदाबाद, ओके। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, सुभान अल्लाह। तो जनाब ये थे बिन साहब हस्ब दस्तूर, और उन्होंने अपनी हाज़िरी तो लगा दी है। और जो मौसम की तब्दीली वाली बात है उसके हवाले से थोड़ी सी बात करते चलें कि जी मौसम इस वक्त तब्दील हो रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं कहीं कहीं सुनने में आता है कि जी कोई फ्लू का शिकार हो गए हैं, कहीं पे थोड़ा बहुत उनको फीवर हो रहा है, और थोड़ा सा ये डेंगी वायरस का मच्छर वाला जो चक्कर चल रहा है, इसमें थोड़ी सी एहतियात करें जनाब। और जो हुकूमत की जानिब से इसकी मुकर्रर करदा SOPs हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है, आज भी मैं देख रहा था, बड़ा अच्छा मुझे मैसेज लगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो आगाही दी जा रही है। और पहले शायद मैंने भी इस चीज़ को इस तरह से नोटिस नहीं किया था कि जी कहीं कहीं हम देखते हैं पानी के जौहर हैं, कोई अभी हमने रिसेंटली कोई भी ऐसे काम किया हो, कोई सफाई सुथराई हो घर में, तो कहीं पानी का कोई हौज बन गया है, कोई बर्तन है इसके अंदर पानी रखा हुआ रह गया है, और वहाँ पर जो है वो मच्छर जो है वो आना शुरू हो गए। तो उस चीज़ को भी जो है ख़त्म करें, और बिल्कुल मच्छरदानियों का इस्तेमाल करें। और बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है इस हवाले से आगाही दे रही है। और बात फिर वहीं आ जाती है कि जी एक शख्स या एक इदारा या एक हुकूमत जिसकी ज़िम्मेदारी है आपको आगाही देना। अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि जनाब ये काम ऐसे नहीं, इस तरह से किया जा सकता है, या आप इस तरह से इस काम को करें। मेरा पैगाम दे के अपनी हुज्जत तमाम कर लेना वो एक तरफ, लेकिन उसके बाद अगर आप उस पर अमल करते हैं तो उससे आपका ही फ़ायदा है। मैंने तो अपना काम कर लिया, मैं तो आपको मैसेज दे के चला गया। अब आपने उसको अपने लिए देखना है कि आपको क्या सूटेबल लगता है, कि हाँ जी ये जो बात कही जा रही है ये क्या मुझे मुखातिब किया गया है, या मुझ जैसे दीगर वो लोग जो कि इस वक्त इस चीज़ से जूझ रहे हैं। अगर हम दीगर सूबों की तरफ रुख करें, ज़्यादा दूर नहीं जाएं, सिर्फ हम पंजाब की तरफ देखें, तो पंजाब में भी अक्सर केसेस जो हैं वो डेंगी के जो बहुत ज़्यादा इस वक्त आ रहे हैं। और सुबह मैं इत्तेफाक से खबरों में देख रहा था कि डेंगी के बाकायदा वार्ड्स अलग हो गए। यहाँ कराची के अंदर भी हम हॉस्पिटल्स में देखते रहे हैं कि वो जालियाँ वगैरह लगा के जो है सेपरेट कर देते हैं उन चीज़ों को। तो बहुत ज़्यादा कोशिश करें, थोड़ी सी एहतियात करें। देखिए बाद में चल के परेशान होने से बेहतर है कि बंदा आज ही इन चीज़ों को यहीं पर ही रोकथाम कर लें, ना कि हम आगे चल के जो है वो किसी चीज़ की वो परेशानी की वजह से खुद भी डिस्टर्ब हो, अपने घर वालों को भी डिस्टर्ब करें। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक एडवांटेज है कि हम इसको बर वक्त ही यहीं पर ही रोक लें, ताकि हमें आगे चल के किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा जनाब, वंस अगेन आई हैव अ रिक्वेस्ट। तो जनाब ज़रूर 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 हम शामिल करें कुछ ही देर में आपकी इस रिक्वेस्ट को भी। और थोड़ा सा बस वेट करें, और ज़रा एक बात और एक पैगाम मैं ज़रा देता हुआ आगे चला जाऊँ, ताकि फिर हमें जो है वो कोई बात कहने में या कुछ रुकने का बातों का इंतज़ार ना करना पड़े। और कभी होता है ना कि इंसान बहुत सारी जो है वो बातें कहना चाहता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं तो फिर वो रुकना पड़ जाता है बात समझाने के लिए भी। तो कभी कभी इंसान को जो है थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी के अंदर खामोशी का भी इजहार करना चाहिए। और बाज़ आपका खामोश रहना किसी काम में या किसी फैसले को कर लेने में बहुत आसानी कर देता है, क्योंकि आप जो है वन साइडेड बात तो सुनते रहते हैं, लेकिन आप उस पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। तो सामने वाला भी इंतज़ार करता है, और आपका बाज़ खामोश रहना कहीं पर जो है आपकी जो हैबत को, आपके जलाल को ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ज़रा कोशिश करें, समझ लें। मैंने एक बहुत पहले भी एक दफ़ा इसी प्रोग्राम में ही आप लोगों से कहा था कि जी फैसला लेने में जल्दबाजी ना करें, हर लिहाज से उस मौजू को जांच लीजिए और देख लीजिए कि कहाँ इसका फ़ायदा है आगे चल के, कहाँ इसका नुकसान है। हम अक्सर और बेशतर बाज़ों का शायद इसी वजह से मार खा जाते हैं कि हम उस तरह चीज़ों को जज नहीं कर पाते, और जल्दबाजी में हम कोई ऐसी बात, कोई ऐसा फैसला ले बैठते हैं जिसकी वजह से हमें चंद जो है दिनों में या चंद लम्हों के बाद ही उस चीज़ का एहसास होता है कि यार हम इसको मज़ीद थोड़ा सा डीपली जाके व्यू कर लेते, समझ लेते, और फिर हमें आगे चल के प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये थोड़ी सी हमारी
जो है वो दूर अंदेशी इस चीज़ों में जो है वो काउंट होती है, और हमें अंदाज़ा होता है कि हम किस हद तक इन चीज़ों के साथ कनेक्ट हैं और कितना हम दूर हैं। अभी हमें लोगों के साथ कनेक्ट होना है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, लोग क्यों डिस्कनेक्ट कर जाते हैं, किस तरह से हम लोगों के ज़रूरियात को या उनके इंटरेस्ट को या उनके कंसर्न्स को, उनके इशू को समझ नहीं पाते हैं। हम हर दफ़ा कोशिश करते हैं कि जी सबसे पहले हम जो है वो अपनी बात को डिलीवर करें, सामने वाला क्या कहता है उस पे हमें बाज़ औक़ात जो है वो बाज़ औक़ात क्या अक्सर ही हम जो है सामने वाली बात को जो है वो कहते हैं छोड़ दो यार, हम आपको जो लेक्चर दे रहे हैं, जो हम समझा रहे हैं, हमारी बात को समझो। तो थोड़ा-सा समझ लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद कोई बात कीजिए, ताकि आपको जो है आगे चल के परेशानी ना हो। जनाब एक रिक्वेस्ट आई है और उसको भी हम ज़रा शामिल करके आते हैं वापस। फिर 99213666 पर आपकी कॉल्स और 8881 पर आप लोग के मैसेज भी आएंगे, उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो रहिए FM 88.6 के साथ। फिर आते हैं जल्दी से वापस इस ट्रैक के बाद। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम सुने हैं दोस्ती, और इस वक्त तकरीबन वक्त जो है वो कंप्लीट हो गया है, और बहुत सारी बातें थी जो कि आज की नशिस्त में होनी थी मुकम्मल, लेकिन मैं नहीं कर सका वक्त की किल्लत की वजह से। लेकिन बस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर कोशिश करूँगा कि जी बात को बस मुकम्मल किया जाए, ताकि कल जो बात होनी है और वर्ल्ड टॉलरेंस डे के हवाले से, उसके ऊपर भी हम ज़रा अपनी जो है वो ख़ास तवज्जो मरकूज़ रखें, और फिर भी हम ज़रा उस पर कोशिश करेंगे। कल इंशाल्लाह प्रोग्राम में ज़रूर उस पर बात होगी। आज जो बात की उसको थोड़ा समराइज़ करने ज़रा, क्योंकि हम वक्त की वजह से जो है ना बाज़ों का बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाते हैं, और हम जो है चीज़ों को पूरा मुकम्मल करना हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जो हमने आज ज़रा बात की जनाब, ज़रा उसको ज़रा थोड़ा सा रिकॉल कर लें, ताकि जल्दी जल्दी हमें चीज़ों का ज़रा एहसास हो जाए और हम महसूस करें कि हाँ जी, हमने इस वक्त में कितना चीज़ों को हमने गेन किया और क्या चीज़ें हमारी आज रह गई। सबसे पहले जो हमने आज का जो मौजू रखा कि जी कनेक्ट हो लोगों के साथ, ना कि लोगों के साथ डिस्कनेक्ट हो। जब आप उनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो फिर आपको अपना मैसेज डिलीवर करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम लोगों के साथ कनेक्ट ही नहीं होंगे तो फिर हमारी इतनी स्पीच और इतने लेक्चर्स का या उसको समझाने का कोई मज़ा नहीं आएगा, या वो हमारा वेस्ट ऑफ टाइम होगा, हम उसको वक्त को ज़ाया कर रहे होंगे। इसके साथ साथ जिसको जिस तरह से आपने समझाना है, आप जब तक आप उसके मीडियम में या उसकी पिच तक नहीं आएंगे, आप उसको उस तरह चीज़ डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आप लर्निंग एटीट्यूड की तरफ जाइए, सीखने वाले बर्ताव की तरफ आप जाइए, खुद भी सीखें, लोगों को भी उस तरफ जो है वो रगबत दें कि लोग भी उस चीज़ को सीख सकें, ना कि आपकी जो है वो हमारी ख्वाहिश हो कि हाँ जी हम जो है वो इससे कुछ अपना फ़ायदा ले लें या इससे कुछ पैसे कमा लें, या हम इससे कोई ऐसी डील कर लें कि जी हम तुम्हें सिखा रहे हैं, तुम हमें ये काम करके दोगे। हालांकि उससे उस चीज़ को उस शख्स को हो सकता है ज़रूरत ना हो, लेकिन हमें कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिसकी वजह से हम खुद भी पीछे हो रहे हैं तो दूसरे को भी पीछे करते हैं। अगर हम अपनी ग्रो कर रहे हैं तो कोशिश करें उसको भी साथ साथ ग्रो करते रहें। फिर इसके साथ साथ हमने कहा कि जी हम सामने वाले की बात को जब समझ रहे हो तो उसको महसूस भी करें कि हाँ यार, वाकई में ये जो शख्स कह रहा है बात, क्या ये आयत दुरुस्त भी है या नहीं है। क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं बाज़ों का हो पाता कि वो चीज़ क्या वाकई ही हकीकत में एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती, कि हम उस चीज़ को समझेंगे, और जब तक महसूस करेंगे नहीं तो हमें अंदाज़ा नहीं होगा। तो महसूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ तो लिया आपने कि हाँ ये शख्स इस वक्त प्रॉब्लम है, किसी परेशानी के आलम में, लेकिन हमने उसको वाकई में रियलाइज़ किया या नहीं किया, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ साथ हम सामने वाली की ज़रूरियात को समझें, उसके इंटरेस्ट को देखें। फिर हम कोशिश करें कि हमें जो इश्यूज़ हैं फिर हम उसको डिस्कस करें, फिर बैठ के उसका एक हल करें। हम उसके ऊपर कोशिश करें एक ट्रस्ट को डेवलप करें, ताकि वो शख्स आपसे अपनी इनसाइट शेयर करें, और फिर उसके बाद आपका जब उसके साथ ट्रस्ट और एक अच्छी बाउंडिंग, एक अच्छा आपका भरोसा काबिल एतमाद वो शख्स बन जाए, तो फिर आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है कि आप उस ट्रस्ट को एक्सटेंड कर देते हैं। बहुत सारी जगहों पे आप उसको फेवर भी दे देते हैं, बहुत सारी जगहों पे आप उसकी गलती कोताहियों को भी माफ़ कर देते हैं, आप थोड़ा सा बर्दाश्त का मुजाहरा करते हैं। लेकिन आपको पता है कि मैं अगर थोड़ी सी जो है वो गलती या कोताही करूँगा तो मेरे लिए जो है उस चीज़ को संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो कहते हैं कि जी दोस्त को हज़ार मौके दो कि वो दुश्मन को, सॉरी, हज़ार मौके दो कि वो आपका दोस्त बन जाए, और दुश्मन को और दोस्त को कोई एक मौका ना दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। यह हथेली का कॉल है। तो ज़रा इस बात को भी ज़रा जहन में रखें कि कोई ऐसा मौका या कोई ऐसी बात ना हो कि जो कि बिल्कुल यूज़लेस हो, जिसका कोई मायने ना हो, कोई सर पैर ना हो, आपका सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम हो। आपको हर चीज़ को देखना है, समझना है, और कोशिश करनी है कि जो लोगों के साथ कोई गलती कोताही हो गई, छोटी सी बात से ही देखें आपकी हमारी आपस में कोई रिलेशन अगर ख़राब है तो कोशिश करें किसी बहाने से चलें, आप लोगों के साथ दोबारा से कनेक्ट हों, और थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा आपको भी करना है। थोड़ी सी देखिए तालीम शायद दो हाथ से बचती है, तो कोशिश आपने यही करनी है कि आप थोड़ी सी पहल करें। आप ये इंतज़ार ना करेंगे वो साहब करेंगे या वो उधर से कोई पहल होगी तो मैं ही फिर आगे अपना कदम आगे बढ़ाऊंगा। नहीं जनाब, आप अपना काम मुकम्मल कीजिए, अपने हिस्से की मेहनत ज़रूर कीजिए, परवरदिगार आपको उसका ज़रूर अजर देगी।
تو بس یہیں پہ آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اب نیکسٹ کل آپ سے پھر بات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ, ایک نئے دن میں آپ کے ساتھ ملاقات رہے گی. تب تک رکھیے گا ڈھیر سارا خیال, پروگرام سنتے رہیے گا دوستی, اور اسی خیر دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں جناب. کہ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں, اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں, اور ہمیں بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو پروگرام دوستی سے دیجیے حیدر شیخ کو اجازت. انشاءاللہ کل ہوگی ملاقات. اللہ حافظ, فی امان اللہ.